welcome back to the Gnan Manjari Modern School. Today we are learning about the standard 7 mathematics. In the previous session we have already seen exercise 1A. Okay, हमने पहले की सेशन में exercise 1A ऑलरेडी देख ली है and पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज भी हमने देखी थी, राइट। पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज भी हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की और साथ में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की भी देखी। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देखी थी? वन ऑफ देम दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड वन दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड वन दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आफ्टर दैट एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, additive identity, that is any number that are multiplied with the 1, then answer is number itself. Sorry, additive identity is any number that are added with the 0, then answer is number itself. Okay, and multiplicative identity, that is any number that are multiplied with the 1, then answer is number itself, that is multiplicative identity. Okay, so all this identity we are already learned in the previous session. हमने previous session में already ये identities देख ली। तो ये सारे identities का यूज़ करके हम अभी exercise 1B and 1C की तरफ जाएंगे डायरेक्टली, ठीक है। So let's start today's session. So exercise 1B. In exercise 1B, first question, that is use commutative and associative property of addition to simplify the following. One has been done for you. Okay, हमको यहाँ पे कॉम्यूटेटिव और आइदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमको सॉल्व करना है और उसमें से एक आपको समझाया है। यहाँ पे क्वेश्चन है फर्स्ट, 7 + 8 + 3, 7 + 8 + 3. So what is the easy method to solve this one? तो 7 और 3 को हम पहले ऐड करेंगे तो मुझे इजी होगा एडिशन, एंड जो आंसर आएगा उसमें हम क्या ऐड करेंगे? 2 ऐड कर देंगे। ओके, एंड +2 भी है, सॉरी, यह वन ऑफ देम 2। सो 7 और 3 का एडिशन हम इजीली कर सकते हैं। तो 7 + 3 पहले करेंगे एडिशन, एंड उन दोनों का एडिशन जो है वो 8 + 2 के साथ करेंगे, क्योंकि 8 और 2 का एडिशन हमको इजी होगा, राइट। सो आंसर आएगा आपको 7 + 3 10, 8 + 2 10, that is 20. Clear? So this is the easiest method to use property as well as in the sum, that is commutative or either associative. Next is that is 89 + 36 + 64 + 11. 89 + 36 + 64 + 11. So in this one, which numbers we are adding to form easy? That is, we are adding 89 and 11, and addition of 34 and 66, that are easiest. Okay, 9 + 1 10, 1 carry, 8 + 9, 9 + 1 10, 100, and here 6 + 4 10, 6 + 9 + 1 10, that is 100. Then answer is 200. Okay, we are using the property to arrange all them with the any order. Okay, next, that is 43 + 29 + 79. 49 + 23. Sorry, 43 + 21. 43 + 21 + 79. तो अभी इनमें से किसका एडिशन जो है वो इजीएस्ट होगा? 21 और 79 का एडिशन मुझे इजी रहेगा, और उसका जो आंसर आएगा उसको मैं 43 के साथ ऐड करूंगा। 9 + 1 10,
1 carry, 7 plus 1, 8, 8 plus 2, 10. 100 plus 43, the answer is 143. Right? Clear? This is the easiest way. And last D1, 64 plus 26 plus 74 plus 36. 64 plus 26 plus 74 plus 36. Now, which one are added? That is easily. Okay, कौन से नंबर्स को ऐड करेंगे तो इजीली रहेगा मुझे? यहाँ पे 74 एंड 26 को ऐड करेंगे तो इजी रहेगा, एंड 64 एंड 36 को ऐड करेंगे तो वो इजी रहेगा. सो 64 प्लस 36 प्लस 26 प्लस 74, then answer will be 64 plus 36, that is 6 plus 4 10, 10, 9 plus 1 10, that is 100, plus 26 plus 74, that is 100 again, then final answer is 200. Clear this? Right? Next, क्वेश्चन नंबर 2. ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था पूरा. Now we are moving on to question number 2. Fill in the blanks. Okay. Question number 2, that is fill in the blanks. Fill in the blanks, that is first one that is done for you, that is A. 5 plus 3 is equal to dash plus 5. 5 plus 3 is equal to dash plus 5. तो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज हमने देखी कि भाई दोनों तरफ जो है सेम नंबर्स ही होते हैं, लेकिन ऑर्डर जो है वो अलग अलग होते हैं. ओके, कॉम्यूटेटिव हो या एसोसिएटिव हो, तो यहाँ पे नंबर सेम ही आएंगे तो दोनों तरफ. यहाँ पे 5 3 यहाँ पे 5 3 होगा, लेकिन ऑर्डर अलग अलग होगा. तो यहाँ पे कौन सा नंबर मिसिंग है? 3 मिसिंग है. देन वी आर एडिंग 3 here. ओके, 5 plus 3 और इधर 3 plus 5, आंसर सेम ही होता है. क्लियर? B1 -7 plus dash -7 plus dash is equal to 5 plus -7. Okay, then again यहाँ पे कौन सा नंबर मिसिंग है? 5 मिसिंग है. So we are writing 5 here. Understood? Third one, -4 plus -5. -4 plus -5 is equal to dash plus -4. तो आगे यहाँ पे कौन सा नंबर मिसिंग है? यहाँ पे हमको -4 -5 और -4 है उस तरफ, तो -5 is missing. So -5 here. Clear? Next, -7 plus -8. -7 plus -8 is equal to dash plus -7. ओके, तो यहाँ पे कौन सा मिसिंग है? A मिसिंग है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? -A. ओके, जो मिसिंग है वो वैल्यू रख देनी है तो आपको आंसर मिल जाएगा. P plus R is equal to dash plus P. P plus R is equal to dash plus P. तो P और R है, तो यहाँ पे P है, तो कौन सा नंबर मिसिंग है? कौन सा अल्फाबेट मिसिंग है? R1. तो आपको आंसर क्या आएगा? R. क्लियर? एंड लास्ट 6th वन देखें तो L plus dash is equal to M plus L. L plus M is equal to dash plus L. So which one is missing? M is missing.
सॉरी L प्लस M, यहाँ पे बॉक्स है, एंड M प्लस L आपको यहाँ पे दिया गया है। So which one is missing here? That is M. Here, this is your answer. Understood? So note down this one, all this question 1 and question 2. Then we are moving on the question number 3. Now we are moving on to question number 3. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज वेरीफाई। हमको क्या करना है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 3 है हमको वेरीफाई। ओके, वी हैव टू वेरीफाई दी ऑल these 3 questions, that is left hand side things are equal to the right hand side things. Okay, so A1 that is minus 18 plus 4 plus 6 is equal to the minus 18 plus 6 plus 4, minus 18 plus 6 plus 4। क्लियर? तो हमको वेरीफाई करना है कि दोनों तरफ का आंसर जो है LHS एंड RHS का आंसर सेम है। ठीक है, तो दिस इज माय लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज माय राइट हैंड साइड। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड के देखें, तो LHS इज इक्वल टू -18 प्लस 4 प्लस 6। तो मैं ब्रैकेट्स निकाल दूं यहाँ पे, तो -18 प्लस 4 प्लस 6, माइनस प्लस माइनस 18 minus 4 that is 12, sorry 18 minus 4 that is 14. Okay, and bigger number that are in the negative, so your answer is -14 plus 6. Again minus plus minus 14 minus 6 8, and bigger number that is -14, and answer is -8. Similarly we are taking RHS at here. In right hand side which numbers are given? -18 plus 6 plus 4. So -18 we are taking as it is, 6 plus 4 10. Okay, minus plus minus 18 minus 10 that is 8, and bigger number sign negative -8. Understood? In both of them that are answer will be same, so that's why we are writing it here RHS is equal to the LHS. ओके, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे एंड ऑफ द क्वेश्चन में RHS इज इक्वल टू LHS। ओके, RHS और LHS का आंसर सेम आया मुझे। अभी हम करेंगे B1। that is 19 plus -3 plus 9, 19 plus in bracket -3 plus 9 is equal to 19 plus -3 plus 9।
क्लियर? So now we are taking the answer. First of all, we are taking the LHS. लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड का LHS इक्वल टू 19 प्लस इन ब्रैकेट -3 प्लस 9, तो आपको आएगा 19 प्लस माइनस प्लस माइनस 9 माइनस 3 माइनस प्लस माइनस 9 माइनस 3 6 and bigger number than that plus 9, and answer is plus 6 and 19 plus 6, okay, plus plus plus, so 19 plus 6 25, right? Again RHS में हम करके देखें, RHS में भी सेम आंसर आ रहा है आपको, देखें चेक करें 19 प्लस माइनस 3 प्लस 9, 19 के आगे कोई साइन नहीं है, देन वी आर टेकिंग एज अ पॉजिटिव 19, प्लस माइनस माइनस 19 माइनस 3 दैट इज 16 एंड बिगर नंबर दैट आर 19, so that's why we are taking plus 16 plus 16 plus 9 that is again plus 25, clear? तो अगेन यहाँ पे फिर मेरा आंसर सेम आ रहा है RHS and LHS का, so we are writing RHS is equal to the LHS, okay? इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे RHS is equal to the LHS, okay? Note down this one again. Now C1 you have to take in your homework. क्वेश्चन 3 का C जो है वो आपको खुद करना है होमवर्क में, ठीक है? Now we are taking the question number 4. Prove that the following statements are false and give the reason. हमको नीचे दिए गए स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है वो प्रूव करना है और उसका रीजन भी हमको लिखना है. सो इसमें अभी 6 क्वेश्चंस हैं, 6 में से हम 4 क्वेश्चंस करेंगे एंड रेस्ट ऑफ द 2 क्वेश्चन यू हैव टू नोट डाउन योर होमवर्क, ओके? क्वेश्चन 4, प्रूव दैट, ओके? इन दैट वन ऑफ द A that is 18 minus 6 plus 3 is equal to the 18 minus 6 plus 3, ओके? हमको ये स्टेटमेंट फॉल्स है वो प्रूव करना है, तो प्रूव कैसे करेंगे कि LHS की वैल्यू लें हम, तो LHS, ओके, दैट इज 18 minus 6 plus 3, 18 minus 6 that is 14, sorry 18 minus 6 that is 12, 18 minus 6 that is 12 plus 3 that is 15, LHS आपको आया 15. Now we are taking the RHS. RHS is equal to 18 minus 6 plus 3, so 18 minus 6 plus 3 9, 18 minus 9, 18 minus 9 होता है आपको 9, राइट? तो यहाँ पे आंसर क्या आया 9 एंड इसका आंसर क्या आया 15. एंड LHS एंड RHS इक्वल नहीं है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ओके? ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है ही, लेकिन उसका रीजन भी देना है और प्रूव करके दिखाना है, और यहाँ पे मैंने प्रूव किया. LHS is not equal to RHS.
LHS है वो RHS से इक्वल नहीं है, सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ B1 करें हम यहाँ पे, (76 - 6 - 20 is equal to 76 - 6 - 20। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है देखते हैं। LHS में 76 - 6 - 20, 76 - 6 क्या होता है 70, 70 - 20 that is answer is 50। ओके, और यहाँ पे RHS हम पे लें, तो RHS में 76 - 6 - 20, तो 76 - 6 - 20, 6 में से 20 हम निकालें तो आंसर आता है 14, राइट। और 14 जो है नेगेटिव में आएगा क्योंकि बिगर नंबर जो है वो 20 जो है नेगेटिव में, इसलिए। नाउ ब्रैकेट ओपन करें तो 76 माइनस माइनस प्लस 14, तो 76 प्लस 14 कितना होगा 10, 9 प्लस 1 10 प्लस 1 6 प्लस 4 10, 1 कैरी, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9, 90। ओके, तो अगेन यहाँ पे मुझे यहाँ पे 50 आ रहा है, यहाँ पे 90 आ रहा है। LHS is not equal to RHS। ओके, स्टेटमेंट फॉल्स है, क्यों? क्योंकि LHS और RHS इक्वल नहीं आ रहे हैं, ठीक है। Now we are taking out C1 and after we are taking F1। (742 minus 58 minus 10 is equal to 742 minus 58 minus 10। तो यहाँ पे LHS that is equal to 742 minus 58 minus 10। तो 742 में से 58 माइनस करें तो कितना आएगा, that is 12 minus 8 4, 3 minus 5 नहीं होगा, then 73, 73 minus 5, 73 minus 3 that is 70, 70 minus 2 that is 68, 684 minus 10 then 674। okay, now RHS करके देखें। RHS में क्या आता है आंसर 742 minus 58 minus 10, 742 minus 58 minus 10, 58 minus 10 that is 48, right? So 742 minus 48, 742 में से 48 निकालें तो 748 minus 42, 742 minus 42 that is 700, and 700 में से again 6 निकालें that is 694। okay, in both of the condition answer is not coming same, so again RHS is not equal to LHS। okay, आप LHS is not equal to RHS भी लिख सकते हो और RHS is not equal to LHS भी लिख सकते हो। understood? and हम अगेन यहाँ पे E1 करेंगे, E that is 8 minus 4 is equal to 4 minus 8। तो LHS हम देखें तो LHS 8 minus 4, 8 minus 4 is 4,
and RHS 4 minus 8, that is minus 4. So RHS and LHS are not equal, so again okay, and rest of the questions you have to write on your homework. 2 क्वेश्चंस हैं D and F, वो आपको होमवर्क में करने हैं. नोट डाउन दिस वन फर्स्ट. So now we are moving on the exercise 1C. Okay, 1B is completed here. So now we are moving on exercise 1C. Okay, so in the exercise 1C, first question is verify the following. Okay, again the same things we have to do it here, verify in the multiplication. So first one, that is 8 into 9 into 5. Question 1, verify, okay, in 8, that is 8 into 9 into 5 is equal to the 8 into 9 into 5. Okay, so same with, we have to take LHS first. Okay, 8 into 9 into 5. So first of all we are solving the bracket. 8 9s are 72 into 5. 72 5s are 5 is are 10. 1 carry. 7 5 is 35 plus 1 36. 360. Okay, and again RHS, that is 8 into 9 into 5. 8 into 9 5s are 45. 45 into 8. 45 into 8, that is 8 5s are 40. 4 carry. 8 4s are 32 plus 4 36. 360. Understood? And it is a verified. LHS is equal to RHS. Okay, same thing you have to do in the rest of the 2 questions, question B and C. Okay, clear that? सेम क्वेश्चन आपको सेम वेरिफिकेशन जो है, जो हमने एडिशन में देखा था, वही आपको मल्टीप्लिकेशन में भी करना है. ओके, एंड सेम मेथड आपको बाकी के 2 क्वेश्चंस 1B and C में भी करने हैं. ओके, now I am directly moving on the question number 2, fill in the boxes. ओके, तो उसमें हम देखें सेम है 5 into 7 इज इक्वल टू डैश into 5. तो जो मिसिंग है वो हमको फिल करना है यहाँ पे. ठीक है, तो उसमें से भी हम पर्टिकुलर क्वेश्चंस यहाँ पे ले लेते हैं, और बाकी के रेस्ट ऑफ के क्वेश्चंस आपको होमवर्क में खुद करने हैं. 10 into -3 is equal to -3 into dash. P into Q is equal to dash into P. A into B is equal to B into dash. ठीक है, तो सेम मेथड हम यहाँ पे फॉलो करेंगे. ठीक है, कि 5 into 7 यहाँ पे कौन सा नंबर मिसिंग है? 5 मिसिंग है यहाँ पे, 5 है सॉरी, तो 7 मिसिंग है यहाँ पे. यहाँ पे 10 into -3 है, तो यहाँ पे -3 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे कौन सा नंबर मिसिंग है? 10. P into Q है, तो P इस तरफ है, तो कौन सा मिसिंग है यहाँ पे? Q मिसिंग है. ओके,
एंड a into b में b है यहाँ पे, तो कौन सा मिसिंग है? a, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर दैट? अगेन द फिल इन द बॉक्सेस है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन दी फिल इन द बॉक्सेस है। ओके, उसमें भी अगेन 6 क्वेश्चंस हैं। 6 में से आपको 4 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवा के दिखा रहा हूँ, बाकी के जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। कि 2 के साथ कौन सा नंबर हम ऐड करेंगे तो 0 आएगा, इनवर्स ऑफ 8 है ना। 2 है तो 2 का इनवर्स क्या होता है? -2, राइट। तो 2 के साथ हम कौन सा ऐड करेंगे? -2 ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। फिर 1 प्लस -1 क्या होता है? 1 प्लस -1 क्या होता है? आंसर 0, राइट। फिर box plus 3 equal to 0 and f minus 3 plus box equal to 0। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर्स क्या आएंगे? 2 के साथ -2 हम लिखेंगे तो ही आंसर 0 आएगा ना। 2 प्लस -2, राइट। एक प्लस में हो, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो उसका आंसर क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, ये एडिटिव इनवर्स है ना, हमको पता है। +1 -1 आंसर 0, +3 के साथ -3 ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा, एंड -3 के साथ +3 ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। अंडरस्टूड? नाउ लास्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट आर मैच द फॉलोइंग में चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली आंसर्स लिखूंगा। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में। तो पहले हम क्वेश्चंस लिख लें। ए में है दैट इज a -3 + 5 is equal to +5 - 3। b 7 + 5 + -3 is equal to 7 + 5 + -3। c -5 into -3 is equal to -3 into -5। d 3 into 5 into -3 is equal to 3 into 5 into -3। e 5 into 0 is equal to 0, and f 7 into 1 is equal to 1 into 7 is equal to 7। क्लियर? सो इसमें आइडेंटिटी कौन सी आएगी? तो फर्स्ट वन हमारे पास है ए, 2 नंबर्स हैं, दोनों में सेम नंबर्स हैं, एडिशन है तो ऑर्डर सिर्फ डिफरेंट है। तो 2 नंबर्स किसी भी ऑर्डर में ऐड करें तो आंसर क्या आता है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, राइट। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, राइट।
कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। यहाँ पे 3 नंबर्स हैं 7 5 -3 7 5 -3, तीनों नंबर्स किसी भी ऑर्डर में ऐड करें तो आंसर क्या आता है? इससे आंसर इज सेम। तो 3 नंबर्स अगर किसी भी ऑर्डर में ऐड करें तो उसका आंसर क्या आता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ओके, 2 नंबर्स हो तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और 3 नंबर्स हो तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नेक्स्ट है -5 × -3 = -3 × -5। मल्टीप्लिकेशन है और दोनों तरफ सेम ही नंबर्स हैं लेकिन ऑर्डर अलग अलग है, तो डिफरेंट ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन हो दैट इज अगेन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। 2 नंबर्स हो तो कॉम्यूटेटिव, 3 हो तो एसोसिएटिव, राइट। यहाँ पे 2 ही नंबर है तो अगेन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आएगी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, यहाँ पे कौन सा आएगा? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है इसमें। अगेन यहाँ पे 3 नंबर्स हैं और तीनों नंबर्स को डिफरेंट ऑर्डर में मल्टीप्लाई किया गया है। देन 3 नंबर्स मल्टीप्लाई इन डिफरेंट ऑर्डर, ओके, देन इट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में ही लिखा है मल्टी दैट इज मल्टीप्लिकेशन, ASS दैट इज एसोसिएशन, COOM दैट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बराबर, तो आपको पूरा लिखना है। यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, जगह नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लेकिन आपको पूरा लिखना है, ठीक है। फिर 5 × 0 दैट इज इक्वल टू 0। एनी नंबर दैट आर मल्टीप्लाइड टू 0 दैट इज आंसर इज 0। देन दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव कॉम्यूटेटिव, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ 0। यहाँ पे प्लीज नोट डाउन कीजिए, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ 0। प्रॉपर्टी ऑफ 0 दैट मींस एनी नंबर दैट आर मल्टीप्लाई विद 0 आंसर इज 0। ओके, यहाँ पे आपको ऑप्शन में नहीं है प्रॉपर्टी ऑफ 0, तो प्लीज वहाँ पे करेक्शन कर दीजिएगा। प्रॉपर्टी ऑफ 0 यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है ना। 7 × 1 = 1 × 7 = 7, ठीक है। तो कोई भी नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा? नंबर इटसेल्फ। ओके, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव This is the multiplicative identity. Clear that? So note down this one, all of these questions. So students, I hope all of you had to enjoy this class very much and आपको यहाँ पे सब कुछ समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे ऑफ एक्सरसाइज 1C। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट, आपको कोई क्वेरी डाउट है तो प्लीज़ आप ग्रुप में पूछिए। हम नेक्स्ट सेशन में और नेक्स्ट वीडियो में आपको वो सारे डाउट जो क्लियर करवा देंगे। सो टिल देन, गुड बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।